معزز سامعین، سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے اور قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ جادو جو ہے یہ ہزاروں لاکھوں سال سے انسان کے لیے ایک پراسرار معمہ ہے۔ چنانچہ آج کل جو یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اس پر تحقیق ہو رہی ہے، انسان کی ذہنی صحت پر اور ہیومن نیورونز کے اوپر جتنی بھی تحقیق ہوئی ہے اور اس کے اوپر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، مینٹل ہیلتھ پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں، اور انسانی ذہنی صحت پر جو مضامین لکھے جا رہے ہیں، ان سب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ جادو کا اثر انسان کی ذہنی سطح سے ہے۔ یعنی اگر کسی کی ذہنی سطح پست ہے تو اس پر جادو کا اثر بھی ہوگا، اور اگر کسی کی ذہنی سطح بلند ہے تو اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہیں، محققین یہ کہتے ہیں کہ جو جادو کو تسلیم کرتے ہیں ان کی یہ تسلیم ہی شکار کرتی ہے انہیں چالاک جادوگروں کا، ایسے افراد کا جو ان کے اس تسلیم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی ذہنی سطح جب سے دنیا میں زمین پر انسان آیا ہے وہ 4 ادوار سے گزرا ہے، اور 4 ہی اس کی ذہنی سطح ہے۔ جو پہلی ذہنی سطح ہے اس کا نام وہ دیتا ہے لوئسٹ مینٹل لیول، اور تحقیق یہ کہتی ہے کہ شروع میں انسان جب کائنات کو دیکھتا تھا تو کائنات سے خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ وہ کائنات کی ساری چیزوں سے خوف زدہ تھا، وہ ان کے سامنے سر جھکا دیتا تھا اور وہ ان کی پرستش کرنے لگ جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ جانوروں کی، ہاتھیوں کی، گھوڑوں کی، بیلوں کی، بندروں کی پرستش کرنے لگ جاتا، وہ آسمانوں کی، چاند تاروں کی پرستش کرتا، وہ زندہ مردہ انسانوں کی پرستش کرتا، کچھ بھی جو اسے خوفزدہ کرتی، کچھ بھی جس کے ساتھ اس کی عقیدت ہوتی وہ اس کو پرستش کرنے لگ جاتا۔ اور یوں جو وہ اس کی جو ذہنی سطح تھی وہ پست ترین اس لیے تھی کہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو اس میں یہ ہمت اور جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کو چیلنج کر سکے۔ وہ یہ سمجھتا کہ جن کی وہ پرستش کر رہا ہے، کیونکہ ان کی ناراضگی ہے اور ان کی ناراضگی کو دور ہی نہیں کیا جا سکتا، تو وہ رو دھو کر خاموش ہو رہتا، اور اس طرح اس کی جو زندگی تھی وہ جبلتوں پر گزرتی، جس طرح جانوروں سے خوفزدہ ہو کر بھاگتے چلے جاتے ہیں، وہ کبھی چیلنج ہی نہیں کرتے، درندوں کو چیلنج نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے وہ جو تھے اپنے دیوتاؤں کو، جو انہوں نے مورتیاں بنا رکھی تھیں پتھروں کی یا کسی بھی چیز کی یا جانوروں کی، وہ ان کو چیلنج ہی نہیں کر سکتے تھے اپنے خداؤں کو، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہو کر رہے گا کیونکہ یہ دیوتا کی ناراضگی ہے، جس کو وہ پرستش کرتے تھے اس کی ناراضگی ہے۔ تحقیق یہ کہتی ہے ان کی کہ اس سطح کے اوپر جدید دور کے لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ کھڑا ہے جو کہ مذاہب کو تسلیم کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو مذاہب ہیں وہ انسان کو کیونکہ عقیدتیں دیتے ہیں، وہ وہم و توہم دیتے ہیں، وہ ایسی رسمیں دیتے ہیں جس میں انسان اپنی عقیدتوں کو چیلنج ہی نہیں کر سکتا، وہ اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ آج بھی جانوروں کو، بیلوں کو اور بندروں کو اور گھوڑوں کو اور ہاتھیوں کو اسی طریقے سے پوچھتا، عقیدتیں رکھتا ہے جیسے وہ لاکھوں سال پہلے رکھا کرتا تھا۔ چنانچہ جو پہلی سطح ہے انسان کی وہ ہے پست ترین سطح، جو کہ محققین، یہ یونیورسٹیوں کے لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ذہنی حالت کیسی ہونی چاہیے، ذہنی صحت کیسی ہونی چاہیے، تو ان کی تحقیق اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ انسان کا جو پہلا دور تھا وہ پست ترین ذہنی حالت کا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرا دور جو انسان کا تھا وہ صرف پست ذہنی حالت کا تھا، یہ ہے لو مینٹل لیول۔ جب انسان پسترین ذہنی لیول سے پست ذہنی لیول میں داخل ہوا
तो तहकीक ये कहती है उनकी कि ये जादू और सहर का दौर था, क्योंकि अगरचे ये बदतरीन चीज है, जादू और सहर की हकीकत ही कोई नहीं है, लेकिन फिर भी इसके जरिए इंसान ने ये तो सोचा कि ये जो देवता हैं इनकी नाराजगी को चैलेंज किया जा सकता है, या उन्हें किसी न किसी तरीके से उनसे मुकाबला किया जा सकता है, या उनकी नाराजगी को दूर किया जा सकता है। लिहाजा इस वजह से जो चालाक लोग थे, उनमें अफराद थे, उन्होंने उनके खौफ से फायदा उठाया। जो उस दौर के लोग थे, जो जो देवताओं से या अपनी पसंद के शख्सियात और उनसे वो खौफजदा थे और प्रस्तश किया करते थे, तो ये जो लोग थे इन्होंने जादू के जंतर मंतर और ये जो झाड़ फूंक और सहर और दीगर कई ऐसे तरीके इजाद कर लिए जिनसे वो लोग समझते थे कि देवताओं की नाराजगी को दूर किया जा सकता है। होते होते जब इंसान पर जब यहूदियों का दौर आया, तो यहूदियों ने अपने पूरे के पूरे दीन को जादू बना रखा था, जादू और सहर का मजमुआ बना रखा था उन्होंने, और इस सिलसिले में उनकी इबादत गाहें जादू की अमाजगाहें बन चुकी थीं, और वो सारी दुनिया में जादू और सहर और साहरी के बारे में उन्होंने नए से नए अलूम, नए से हरूफ उसको तैयार किया, इजाद किया, और दुनिया को और खौफजदा करने के लिए वो ले जाते थे। इसमें आजम और नक्शे सुलेमानी की इस्तिलाहें उन्होंने ही इजाद की और इंसान के सामने लेकर आए, और उनका ये कहना था कि ये जो नक्शे सुलेमानी है और ये जो इसमें आजम है, अगर इसको पढ़ा जाए तो जादू खत्म हो सकता है। ये वो तरीका था जो जादूगरों ने हासिल किया, जिसका मतलब ये था कि उन्होंने अपने जराए आमदनी और दौलत इकट्ठे करने के तरीके खौफजदा लोगों से ये कर लिए और उनको इख्तियार कर लिया। जो तीसरा दौर है, इन मुहक्किकीन की, साइंसदानों की राय के मुताबिक इंसान के ऊपर वो तारी हुआ जिसको वो ये कहते हैं कि रैशनल लेवल। रैशनल लेवल से मुराद ये है कि इंसान ने सोचना शुरू किया, और इस सिलसिले में यूनानियों के फलसफे ने बहुत काम किया, इटालियन के फलसफे ने बहुत काम किया, और ये जो यूनान के फिलोसफर्स थे, खासकर जो सोक्रेटिस थे या एरिस्टोटल था या प्लेटो या अफलातून, इन लोगों ने जब इंसानों पर सवालात किए मुख्तलिफ, तो इंसानों को सोचना आया। क्योंकि सुकरात का तो तरीका ही ये था कि वो चलते चलते, बाजार में चलते चलते पूछा करता था, इंसानों से सवाल किया करता था कि यह आसमान नीला क्यों है, ये जो लिबास आपने पहना हुआ है ये ऐसा क्यों है, ये जो आपको पत्थर पड़ा हुआ नजर आता है ये हट क्यों नहीं सकता। वो इस तरीके से सवालात किया करता था। इंसान को सोचते सोचते वो रैशनल बीइंग बनने की कोशिश की, जबिल्लतों से निकला, और ये तीसरा दौर आया जिसको वो ये कहते हैं कि रैशनल बीइंग का दौर था। मगर हैरत अंगेज तौर पर जो चौथा दौर है, जिसको कि आज का दौर कहा जाता है, और यह भी कहा जाता है कि ये जो आज का दौर है यही कयामत तक तारी रहेगा, क्योंकि आज के दौर में इंसान जहन की बुलंद तरीन सतह पर है। पर इसके लिए जो मुसलमानों के लिए बहुत ही एक दिलचस्प बात है वो ये है कि जो नॉन मुस्लिम मुहक्किकीन है, जो गैर मुतासब है, जिनमें तासब नहीं है, जो गैर मुहक्किकीन मुसलमान हैं, जैसे जो गैर मुसलमान मुहक्किकीन हैं, गैर मुसलमान मुफक्करीन हैं, गैर मुसलमान जो साइंटिस्ट हैं, लेकिन जो उनमें से गैर मुतासब हैं, उन लोगों का ये कहना है कि ये जो जदीद दौर है जिसको वो कहते हैं कि मोस्ट एलिवेटेड मेंटल लेवल, ये कुरान के नाज़िल होने से शुरू हुआ, कुरान की आगाही से शुरू हुआ, और ये इल्म ने इंसान को आगे लेकर गया, और इंसान की जहनी सतह बुलंद से बुलंद होती चली गई। इस सिलसिले में बर्ट्रैंड रसल और रेनेगा और ल्यूपोल्ड जो बाद में मुसलमान हो गए और अल्लामा असद भी कहलाए, इन जैसे लोगों ने यह साबित करने की कोशिश की और साबित किया कि कुरान ही वो ऐसी नाजिल करदा हकीकत है जो इंसान की जहनी सतह को बुलंद तरीन लेकर गई है। इस सिलसिले में सामईन, अगर आप इंटरनेट पर जाएं और यूट्यूब पर अगर आप लगाएं कि प्रॉफिट मोहम्मद ऑनर्ड बाय द यूएस सुप्रीम कोर्ट
as one of the greatest lawgiver. अगर आप ये लिखें यूट्यूब पर और इसमें जब आप देखेंगे तो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को दुनिया का सबसे बड़ा लॉगिवर करार दिया गया है। और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी जो है वो कुरान करीम पर अमल करते ही गुजरी है। दूसरे मानों में आपकी जिंदगी चलता फिरता कुरान थे, क्योंकि कुरान ने पहली बार इंसान की तवज्जो इस तरफ दिलाई कि ये पूरी कायनात और पूरी की पूरी जो कायनात की जो अशिया हैं वो कवानीन में बंधी हुई हैं। ये इंसान को पहली बार पता चला कि हर शय कवानीन के ज़ाब्ते में पाबंद है, और अगर इंसान इन ज़ाब्तों को समझ जाए, इन कवानीन को समझ जाए, तो वो अशिया पर और कायनात पर हुक्मरानी करने लग जाएगा। इसी वजह से कुरान ने यह कहा कि अगर इंसान अपने उस खौफ से निकलना चाहता है, अगर इंसान कायनात और जानवरों की परस्तिश और अकीदत से निकलना चाहता है, तो कुरान ने जो आगाही दी है उसकी तरफ अगर वो आएगा तो वो इस खौफ से आजाद हो जाएगा। ये जो मुहक्किकीन हैं, इन्होंने जो फार्मूला अपनी तरफ से दरियाफ्त किया वो ये था, उनका कहना ये था कि असल में इंसान जो है वो जो लोग, इंसानों का वो गिरोह जो सबसे पहले मज़ाहब को रद्द कर देता है, मज़ाहब की रस्मों को रद्द करता है, अकीदतों को रद्द कर देता है, इनसे इनकार कर देता है, और फिर वो दाखिल होता है हकायक में और आखिरकार वो सच्चाइयों तक पहुंच जाता है। सिर्फ वो लोग जिंदगी की बुलंद ज़हनी सतह के ऊपर फायज होते हैं। असल में ये वही बात कह रहे थे जिसकी तरफ वही, जब से वही इंसान पर नाज़िल होती आ रही है, और फिर आखिरकार कुरान करीम की वही जो इंसान को ये आगाही दे रही है कि सबसे पहले वो इस कायनात में इनकार पर पहुंचे, वो ला पर पहुंचे। जो कुछ उसका तासुब है, जो उसकी अकीदतें हैं, जो उसके मज़ाहब हैं, सबसे पहले उसको ला करे, यानी सबसे पहले इनकार कर दे, इस कायनात के तमाम खुदाओं का, तमाम अकीदतों का इनकार कर दे। उसके बाद वो हकायक में दाखिल हो तो वो एक ऐसी सच्चाई तक पहुंच जाएगा जो आखिरी सच्चाई है, जिसको अल्लाह कहते हैं। और आखिरी सच्चाई अल्लाह का मतलब यह है कि वो ज़ात जिससे बड़ी पनाह कोई नहीं, जिसने इंसान को आकाम दिए और कवानीन दिए, और ये कवानीन तक जब वो पहुंचेगा तो उसकी ज़हनी सतह बुलंद तरीन हो जाएगी। जब वो ज़हन की बुलंद तरीन सतह पर हो जाएगा तो फिर ना उस पर कोई जादू असर कर सकेगा, क्योंकि वो जादू को तस्लीम ही नहीं करता, और जिस हकीकत को वो तस्लीम ही नहीं करता वो हकीकत उस पर असरअंदाज ही नहीं होती। यही वजह है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह में दाखिल हो जाता है उस पर कोई जादू, कोई सहर, कोई तिलिस्म उस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। मोअज़्ज़िज़ सामीन, हम इसके आगे अगले पार्ट में ये देखेंगे कि ये जादू है क्या और कुरान इस सिलसिले में क्या आगाही दे रहा है। आपका बहुत शुक्रिया।